Hello everyone, welcome to Manure and today we will see the actual paper analysis of the Law CT 5 year which was held on 8 October 2021 guys. So this is the second slot analysis. So what was the actual question in an exam? So these all question is a memory based. So each question we will see in the details. It means कौन से section से आए थे, history से, polity से, geography से, science oriented and books and writer and current affairs point of view. So everything we will see here, actual question paper analysis guys. So that will be helpful for to evaluate how the exam was. It means जो आपने appear किया था, so you can evaluate and those who are going to appear the next year guys. So अगर आप next year के लिए plan कर रहे हो, 2022 के लिए plan कर रहे हो, 2022, 2023. So this paper analysis will be helpful for you to understand the paper pattern. Okay, so before start the analysis guys, here is the one information for you. So Google link is given. Actual paper जो यहाँ पे मैं discuss करूंगा, इसका PDF यहाँ पे descriptions में दिया है, तो you can download it. You just have to fill the Google form and you will get the PDF of actual paper analysis. So download कर लेना, काफी helpful रहेगा आपको evaluate करने के लिए. And those who are planning for the 2023 guys, 2022 and 2023 के लिए जो भी preparations planning कर रहे हैं उनके लिए important information है. Here we started the batch for the Law CT 3 years and 5 years. So you can inquire about it and you can call on this number 8828581455. Okay, and otherwise you can visit on our website www.manuaredu.com and in this batch what you will get guys, so live classes होगा, ओके, ई बुक्स होगा जो कि प्रैक्टिस के लिए यू विल लर्न द शॉर्टकट मेथड, डाउट क्लियरिफिकेशन सेशन एंड रिकॉर्डेड वीडियो फॉर द प्री लेक्चर्स प्रिपरेशंस के लिए, टॉपिक वाइज टेस्ट एंड full length mock test WhatsApp group and more than 10,000 questions for the practice and mentorship, which is very important because when a mentor will guide you, so according to that if you will prepare, so definitely will get the good score. Okay, so these all are the some information and don't forget to download the PDF which is actual questions, so that will be helpful for you to analyze your questions जो आपने appear किया है exams में, उसको evaluate करने के लिए. तो see the here first, what was the first question? प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रेन राइट विच ऑर्गेनाइजेशन. सो जो चिल्ड्रंस राइट के लिए जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू. जो ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर से रिलेट करके क्वेश्चन आता है ना, उसी की कैटेगरी में आप इसको रख सकते हो. तो दिस इज द यूनिसेफ, ओके, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड. ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर डॉक्टर B.R. Ambedkar started the fortnight mock nayak. So it's in 1920. So from the history section से ये questions है, काफी important है. And from the modern history, father of Indian space प्रोग्राम, सो विक्रम साराभाई. इसरो से रिलेट करके क्वेश्चन आपने देखा होगा जब भी हम क्लासरूम लेक्चर्स में डिस्कस करते हैं या फिर मेरे जीके सीरीज में भी आपने देखा होगा. सो आई ऑलवेज रिकमेंड कि एटलीस्ट इंपॉर्टेंट डे, इसरो, DRDO, ये सब इंपॉर्टेंट है. यहां से किसी भी वे में क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है. इनसे रिलेट करके जो स्टैटिक इंफॉर्मेशन होते हैं ना, वो थोड़े सा अपडेट होने चाहिए गाइस. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन द टू सेशन ऑफ ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम द इंडियन पॉलिटी सेक्शन. ये जब हम इंडियन पार्लियामेंट को स्टडी करते हैं तो इन पार्लियामेंट्री टर्म्स, नंबर ऑफ द पार्लियामेंट, जो लोकसभा, राज्यसभा, इनके नंबर ऑफ सीट, इनकी एलिजिबिलिटी, तो ये सब बेसिक थिंग्स होते हैं. ये सब आपने अच्छे से स्टडी किया होगा, तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम्स नहीं, यहां पे आप मार्क कर सकते हो. अदरवाइज दोज हु आर गोइंग टू अपीयर द नेक्स्ट ईयर, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि ऐसे इंफॉर्मेशन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट भी नहीं आता कि एकदम इन डेप्थ आपको कॉन्स्टिट्यूशन से या फिर इन डेप्थ हिस्ट्री से या फिर इन डेप्थ ज्योग्राफी से ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे कि जिससे आप काफी डिफिकल्टी फेस हो. ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे इस साल के, और इसी टाइप के क्वेश्चन बेसिकली एग्जाम्स में फ्रेम ही होते हैं, तो उसी को माइंड में रख के आपको प्रिपरेशन करना है. देन फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज B.R. Ambedkar. अगेन देयर इज वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. क्वेश्चन नंबर 6 was India become the sovereign democratic republic January 26, 1950. Everybody knows this is a very simple question. Noise pollution measure unit, so decibels. So ये साइंस ओरिएंटेड क्वेश्चन है. हो सकता है कि किसी को इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी हुआ, बट जो थोड़े से साइंस ओरिएंटेड जीके का प्रिपरेशन किए होंगे तो इजीली मार्क कर सकते हैं. भारत बायोटेक वैक्सीन, देखो अगेन कोरोना वायरस से रिलेट करके ये क्वेश्चन लॉ सिटी 3 इयर्स में भी आया था. ओके, सो कोवैक्सीन एंड अल्जाइमर डिसीजेस रिलेटेड टू द ब्रेन. Very common word है Alzheimer's. So I hope you know this disease is related to the brain. And in which year RTI passed? So 2005 guys. So कांग्रेस जब भी पावर में आई थी 2004 में, उसके बाद ये 2005 में ये पास हुआ था RTI राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. ओके, सो कहीं ना कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन से ही रिलेट करके है. BCG वैक्सीन यूज टू कंट्रोल द विच डिसीजेस. सो वैक्सीनेशन से रिलेट करके, बट इट्स रिलेटेड टू द ट्यूबरकुलोसिस. सो साइंस ओरिएंटेड जीके है.
Whose birthday celebrated as a National Youth Day? Very common question, Jan month से है ये. स्वामी विवेकानंद birth anniversary observed as a National Youth Day. Okay, World Environment Day, one Environment Day when it observed, so 5 June. So 2 question you can see here related to the important day से आया है. So as per my expectation, I was expecting कि at least 1 question आएगा important day section से, but here you can see there is a 2 question. Okay, and the next one is which innovation technology is added by the रंजीत देसाले. Okay, again देखो यहाँ पे भी क्वेश्चन रंजीत देसाले से आया है. अगर से आपने मेरा जीके सीरीज देखा होगा तो उसमें मैंने इनको 2 टाइम डिस्कस किया था. एक तो अवार्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो इनको ग्लोबल टीचर्स अवार्ड मिला था, एंड सेकेंड वन जो एजुकेशन के लिए इनको यूनाइटेड नेशन ने 5 ईयर्स के लिए मुझे एग्जैक्टली वो वर्ड याद नहीं आ रहा है, उसके लिए अपॉइंट किया गया. सो इनसे रिलेट करके हाईली एक्सपेक्टेड था कि इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर इंपॉर्टेंट अवार्ड पॉइंट ऑफ व्यू से किसी वे में क्वेश्चंस में भी फ्रेम. सो यहां पे देखो लॉ सिटी 3 इयर्स में भी आया था, 5 इयर्स में भी पूछा जा रहा है. सो इट मींस जो मेरा गेस था इट वाज करेक्ट. ओके, सो प्राइमरी लेवल बुक्स फॉर सेल एंड स्टडी. सो QR कोड सिस्टम जो इन्होंने स्टडी के लिए देखा, अपने महाराष्ट्र के बुक में भी देखा होगा. QR कोड के थ्रू आप चैप्टर को स्कैन करके आप डायरेक्टली स्टडी कर सकते हो. सो ये इनका ही रिसर्च एंड आइडिया है. एंड हाउ मेनी स्पोक आर देयर इन द चक्र ऑफ द नेशनल फ्लैग? वेरी सिंपल क्वेश्चन, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं. 24 स्पोक्स होते हैं जो आपने देखा होगा ना, ये जो चक्र होता है. सो जो तिरंगे के बिटवीन, सो देयर इज अ 24 स्पोक. ओके, इसको तीलियां भी बोलते हैं. नेक्स्ट इज द prohibited age for the employment of the child act 1986. so it's the right answer, the 14 years. which organization give the state of the world heritage site? so आपने so many time इसको स्टडी किया होगा. यूनेस्को nominated this place in the world heritage site. यूनेस्को आप बहुत बार सुनते रहते हो. तो यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. अगेन this question is from the important organization section. so as per my expectation, again here you can see there is a one more question related to the important organization. and the next one is a Gautam Buddha born in a basically the question is asking which place, जो ऑप्शन वहां पे था, the name of the place, कहां पे पैदा हुए थे. so right answer of this question is a नेपाल. आपने देखा होगा जब भी मैं स्टैटिक ओरिएंटेड जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहा था तो वहां पे मैंने 2 एरियाज बताए थे जो कि रिलीजन से रिलेट करते हैं, बौद्धिज्म एंड जैनिज्म. बौद्धिज्म एंड जैनिज्म से किसी टाइप के भी क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते. इट मींस रिलेटेड टू द महात्मा बुद्ध, कहां पे पैदा हुए थे, फादर्स मदर नेम, एंड बौद्धिज्म की जो फिलॉसफी है उससे रिलेट करके कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ सकता है. सो दीज 2 रिलीजन इज इंपॉर्टेंट एज अ स्टैटिक एंड एंशिएंट हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू गाइस. Okay, so right answer was the Nepal. and then Bhatnagar award is given to the distinctive contribution to the, it means कौन से फील्ड में दिया जाता है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी. सो अवार्ड सेक्शन से ये हो गया. एंड विच स्टेट इंडिया हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेशियो? सो आई होप एवरीबडी नो केरला. काफी टाइम से ये फर्स्ट पे ही रहता है. एंड इसरो स्टैंड फॉर व्हाट? वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई होप कि सबको पता होगा, किसी को इसमें डाउट नहीं होगा कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है. सो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का फुल फॉर्म, इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु, इसरो के प्रेसिडेंट के शिवम. ये सब सारे स्टैटिक इंफॉर्मेशन है, इतना तो आई होप कि एवरीबडी नो. फुल फॉर्म ऑफ द NCW, सो नेशनल वुमेन्स कमीशन फॉर वुमेन. यहाँ पे अगर किसी को आइडिया नहीं होगा तो हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्टी हुआ हो. बाय द वे करंट अफेयर्स से रिलेट अगर कोई स्टडी करता होगा तो इसको मार्क कर लेगा इजिली. विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर ऑफ इंडिया? सो इट्स उत्तर प्रदेश. बिकॉज अभी देखो अपकमिंग में उत्तर प्रदेश जो स्टेट है उसका इलेक्शंस आने वाला है, तो ये उसी से कनेक्ट करके पूछा है. बिकॉज अपकमिंग इलेक्शन विल बी हेल्ड इन उत्तर प्रदेश. ओके, तो यहां से ये करंट अफेयर्स से भी आप कनेक्ट करके कर सकते हो. है तो स्टैटिक का क्वेश्चन, बट इसको कहीं ना कहीं आप करंट अफेयर्स से कनेक्ट कर सकते हो. नेक्स्ट वन इज विच फोक डांस परफॉर्म इन त्रिपुरा? सो राइट आंसर इज ओजागिरी. ये एक डांस एंड जो फोक डांस से क्लासिकल डांस से एक क्वेश्चन फ्रेम होता है. सो दैट इज दिस इज द राइट आंसर. एंड देन नेक्स्ट वन इज वाशिंगटन डीसी स्टैंड फॉर व्हाट? सो ये क्वेश्चंस मैंने अपने क्लासरूम लेक्चर में बहुत बार स्टूडेंट से पूछा है, तो सम टाइम दे आर कंफ्यूज कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीसी. इस डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? सो बहुत बार मोर देन 70 to 80% स्टूडेंट नहीं बता पाते, जबकि बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है. डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया. ओके, सो अगर से आपने स्टडी किया होगा तो दैट इज फाइन. हो सकता है कि इसमें आपको डिफिकल्ट हो, बट क्वेश्चन ईजी है. Next and the last 5 question is where is the head office of the WHO? Again one more question related to the organization. So Geneva, Switzerland, बहुत सिंपल है, इसका शॉर्टकट्स भी मैंने एक्सप्लेन किया है. W which the organization which is started with the W and end with the organization O. It means it started with the W and end with the O. It's organization in Geneva, Switzerland, and there is a 1 or 2 exception. So
और उसको छोड़ करके बाकी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। विच एक्टिव वोल्केनो फाउंड इन इंडिया? सो बारेन आइलैंड, सो जो कि अंडमान निकोबार में है इंडिया में। सो बेसिकली फ्रॉम द ज्योग्राफी सेक्शन इंपॉर्टेंट है। एंड रिसेंटली क्रिएटेड स्टेट इन इंडिया, सो देखो ये भी एक करंट अफेयर्स से नहीं बोल सकते बट पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना 2 जून, ये मैंने एडिशनली यहाँ पे ऐड कर दिया आपके रेफरेंस के लिए, 2 जून 2014। ओके, एंड पंचतंत्र रिटन बाई विष्णु शर्मा। सो ये एक हिस्टोरिकल बुक्स एंड राइटर से क्वेश्चन है। सो विष्णु शर्मा इज द राइट आंसर। एंड डेमोक्रेसी डजंट स्टैंड फॉर वायलेंस, ये इसका राइट आंसर था। ओके, सो डेमोक्रेसी की जो थ्योरेटिकल पार्ट होते हैं कि डेमोक्रेसी में क्या नहीं होना चाहिए, तो वायलेंस बेसिकली। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन गाइस। सो डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड, डिस्क्रिप्शंस में डाउनलोड लिंक दिया है, उसको आप डाउनलोड कर लेना, अच्छे से स्टडी कर लेना, देख लेना कितने आंसर आपके करेक्ट हैं या फिर रॉन्ग है, राइट है, वॉट एवर। एंड दोज हु आर प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर 2022 एंड 23, so this paper analysis will be very helpful for you because most of the time student जो मुझसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं रिलेटेड टू यही कि जीके के कैसे पढ़ना है, स्टैटिक जीके में क्या पढ़ना है, स्टैटिक जीके या फिर करंट अफेयर्स किस पे फोकस करें, बहुत वास्ट सेक्शन है। ओके, सो यही सबसे ज्यादा क्वेश्चन होता है। सो डोंट वरी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस टाइप के क्वेश्चन आए एंड टू द पॉइंट। हमने अपने क्लासरूम लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था। मोर देन 80% कंटेंट जो कि एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ कहां से क्वेश्चन आ सकता है, हिस्ट्री से क्या आ सकता है, पॉलिटी से क्या आ सकता है, एंड ज्योग्राफी से क्या आ सकता है, करंट अफेयर्स से क्या आ सकता है, वो सारे पॉइंट जो हमने डिस्कस किए थे क्लासरूम लेक्चर्स में एंड हमारे लाइव सेशंस में, एंड जो भी मैंने आपको जीके सीरीज में भी बताया था, अगर आपने अच्छे से स्टडी किया होगा तो डेफिनेटली आप गुड स्कोर करेंगे। एंड जो मोस्ट ऑफ द कंटेंट्स आए थे, जो हमने 1000 क्वेश्चन एक जो क्वेश्चन बैंक दिया था फ्रॉम द स्टैटिक जीके, सो वहां से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन सारे क्वेश्चन फ्रेम हुए थे, तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इट्स टू द पॉइंट कंटेंट। ओके गाइस, सो इफ यू आर प्लानिंग फॉर द 2022, so if you want to expert guidance for your preparations and right contents, so you can inquire about the program and call on this number 8828581455, and don't forget to subscribe guys, because here you will get the latest update related to the upcoming exam and cap round process, each and everything. And you can follow us on social media, Facebook, Instagram and Telegram to get the latest notification, and share this video with your colleague and friends so they will be also benefited. अगर उन्होंने एग्जाम अपीयर किया होगा तो वो एनालिसिस देख सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान करें तो उनके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। ओके, एनी अदर डाउट एंड क्वेरी अगर आपके माइंड में है रिलेटेड टू द एग्जाम्स, रिलेटेड टू द पेपर पैटर्न या फिर प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, और कोई additional guidance चाहिए, so you can ask in a comment box, so definitely I will try to make the video on that topic. So अगर ये video informative है, so please like and share with your friend. See you in next video. Thank you.